الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ہم سابقہ درس میں سورۃ الشمس کی شروع کی آیات لی تھی، یا آدھا حصہ لیا تھا ہم نے، آدھے سے زیادہ. اور اس صورت میں ہمیں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. تقریباً 10 سے زیادہ قسمیں کھانے کے بعد جس حقیقت کو بیان کیا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے نفس کے تزکیہ کے حوالے سے بات کی کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یہ ہے جو کامیاب ہے. اور جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو برباد کر لیا اور جو نیکی اور خیر کا انسان کے اندر جذبہ رکھا گیا ہے اس چیز کو اس نے دبا دیا، ختم کر دیا، تو یہ ہے جو برباد ہونے والا نامراد آدمی ہے. تو ان دو آیتوں کے اندر 10 قسموں کے بعد اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے. اگرچہ ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کے الگ معیار ہیں. ہمارے ہاں کامیابی کا معیار دنیاوی لحاظ سے کہ دنیا میں کوئی اپنا نام اونچا کر لیتا ہے، دنیا میں کوئی زیادہ مال و دولت کما لیتا ہے، کوئی بڑے عہدے منصب حاصل کر لیتا ہے، اور بھی کسی چیز میں، کسی بھی فیلڈ میں زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، قد افلح، یقیناً کامیاب وہ ہے، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. جو نفس کی غلاظتیں ہیں، شرک کی، بدعات کی، کفر کی، منافقت کی اور طرح طرح کی جو گناہ انسان کے اوپر چھاتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، ان چیزوں سے بچا لیا، تو یہ ہے جو اصل کامیاب ہے. چاہے وہ غریب فقیر ہو، کسی جھونپڑی میں رہتا ہو، لیکن جس نے یہ چیز کر لی اصل کامیابی ہے. اور کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی. دنیا میں بھی اگرچہ انسان بعض اوقات غریب فقیر ہوتا ہے، دنیا کے اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھو گے کس قدر اس کو اطمینان و سکون ہے، کس قدر اس کی زندگی سعادتوں کی خوشحال زندگی ہے. اس کو کسی چیز کا کوئی ڈپریشن، کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کوئی دنیا کی چیزیں اس کے دل دماغ پر مسلط نہیں ہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی ہے اور اس کو اور کی تمنا نہیں ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ کے دیے پر اکتفا ہے. تو چنانچہ یہ ہے جو اصل باتیں ہیں. اللہ الغنا و بین القلب، اصل تمنگری دل کی تمنگری ہے. اصل انسان کا مالدار ہونا دل کا مالدار ہونا ہے، اور دل کا مالدار ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو دنیا کی ہر چیز سے جو ہے لاپرواہ کر دے، بے پرواہ کر دے، کسی چیز کا محتاج نہ ہو انسان. تو بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات انسان دیکھو گے کہ کوئی بالکل دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو کسی چیز کی فکر نہیں، کوئی اس کو غم نہیں، کوئی کس طرح کے اس کو خطرے خدشات نہیں. اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگی تھی کہ کس قدر وہ دنیا کے اندر بھی ان کو خوشحال سعادت کی زندگی تھی. اور اس کے مد مقابل وقد خواب من دساہا، جس نے اس نفس کو برباد کر دیا. اللہ نے جو اس نفس کے اندر جو خیر کے جذبے رکھے ہیں ان کو دبا دیا اور ان سے وہ کام نہ لیا جو ہونا چاہیے تھا، تو کیا ہے، یہ برباد ہوا. مقصد کیا ہے کہ خیر نیکی کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، برائی ہے، دنیا ہے، دنیا کی جاہ و عظمت ہے، اس کے پیچھے دوڑ ہے، اس کی تمنا ہے. تو اس کی آخرت تو جو برباد ہے وہ تو ہے، اس سے پہلے دنیا برباد ہے کہ دنیا کے اندر ہی اس کی ساری کوششیں اس دنیا کی دوڑ میں لگی ہیں، اور مال و دولت کی ہوس ہے، تھوڑا یہ جو ملا ہے اس پر نہیں بلکہ اور زیادہ کی تمنا ہے اور زیادہ کی ہوس ہے. اور یہ ہوس ہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دنیا کے اندر. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں 2 جگہوں پر اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے.
फला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, कि इन काफरों के, मुनाफिकों के, बेदीनों के माल औलादें देख कर आप किसी ताज्जुब का शिकार ना हो कि काफर है, अल्लाह ने इसको इतना माल क्यों दिया है। अल्लाह माता इनको इतना माल इसलिए दिया है लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, कि ताकि इससे अल्लाह ताला दुनिया के अंदर इनको अज़ाब दे। और ये हकीकत हमारे सामने है कि कितने बड़े बड़े मालदार, उनका माल ही उनकी तबाही बर्बादी कर दिया होता है। माल की वजह से, माल की हवस, उसकी लालच, उसको मज़ीद हासिल करने की कोशिश, और जो मिला हुआ है उसके नुकसान का ख़तरा, हर वक्त इंसान इसी सोच व फिक्र में, इन्हीं परेशानियों के अंदर। तो क्या ये ज़िंदगी कैसी है, किस कदर वो जहन्नम के अंदर रह रहा है, अगर से माल है। और फिर आखिर में हम सुनते हैं इस तरह के बड़े बड़े जो दुनिया के मालदार तीन लोग होते हैं कि इस कदर दुनिया से, माल से तंग होते हैं कि उनको दुनिया में रहने का वारा नहीं होता, ताकि खुदकुशी करके कत्ल होते हैं, मरते हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो जिनको हम समझते हैं कि बड़े खुश होंगे, बड़े खुशहाल होंगे, उनकी खुशहाली क्या है, पल पल की बदबख्ती है। तो ये भाई वो हकीकत जो हमें बयान की सूरत के अंदर, उसके बाद हम चांद सूरत के बाकी रह गए उनको मुकम्मल करते हैं। अल्लाह फरमाता है, मिसाल देता है बल्कि कि किस तरह इंसान जब अपने आप को गिरा देता है और खैर के जो अल्लाह ने इंसान के अंदर जज्बे रखे हैं इनको मिटा देता है, तो ऐसे सिर्फ अफराद नहीं बल्कि कौमें भी किस अंदाज से तबाह बर्बाद होती है। उसकी मिसाल देते हुए माता ताला कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, जुटलाया कौम समूद ने अपनी सरकशी की वजह से। कौम समूद कौन है? तारीखी लिहाज से देखा जाए तो आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल के बाद नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, और नूह अलैहिस्सलाम की आमद उस वक्त होती है जब ज़मीन पर शिर्क और कुफर ये चीज़ें शुरू होती हैं। उससे पहले सभी लोग तौहीद पर ईमान करते हैं। तो उस वक्त जब दुनिया में शिर्क व कुफर फैलता है तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, और 950 साल तक ये भी अपनी कौम को दावत व तबलीग करते रहे, और चंद लोगों के सिवा बाकी अभी सभी अपने कुफर पर डटे रहे। तो अल्लाह ने फिर उस कौम को हलाक करने के लिए बहुत बड़ा तूफ़ान भेजा कि जिससे पूरी रूह ज़मीन को गर्क कर दिया, और नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का उस पर सवार कर दिया। तो नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो तारीखी तौर पर कौम आती है वो कौम आद है। कौम आद कि जिनके नबी हूद अलैहिस्सलाम थे, और ये इलाके के लिहाज से तकरीबन यमन का जो मशरकी इलाका है, अम्मान के मगरब में, इस जगह पर तकरीबन ये कौम रहती थी। तो ये कौम बड़ी क़ुव्वत व ताकतों में बड़ी बहादुर थी, बड़े लंबे चौड़े जिस्म थे इनके, और बड़े अल्लाह ने दुनिया में इनके वसाइल दे रखे थे इनको, लेकिन कुफर बेईमानी की वजह से अल्लाह ने इनको हलाक किया। उनके बाद तीसरे नंबर पर जो कौम समूद है, जिसका यहाँ जिक्र पढ़ रहे हैं, कज़्ज़बत समूद को झुठलाया कौम समूद है। तो तीसरे कौम आद के बाद जो है कौम समूद आती है। इनके नबी कौन थे? इनके नबी थे सालेह अलैहिस्सलाम, और इनका इलाका जो है वो मदीना और तबूक के दरमियान, मदीना से अगर शुमाल को जाते हैं तबूक की तरफ, तो मदीना से तकरीबन कह रही कि 400-500 किलोमीटर के फासले पर मदाइन साले के नाम से आज भी इनके घर मौजूद हैं। पहाड़ों में तराशे हुए, पहाड़ों में मकान खोदे हुए इनके मकान आज तक भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर थी एक कौम, कौम आद को चूँकि अल्लाह ने हवा से, आंधी से तबाह किया था, तो इस कौम ने कहा कि हम घर बनाते ही ऐसे हैं कि जिसमें आंधियाँ तूफ़ान जिस पर असर अंदाज ना हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पहाड़ में मकान खोदे कि आंधी आएगी तो पहाड़ तो नहीं उड़ाएगी ना। लेकिन उनको नहीं पता था कि जिस अल्लाह के साथ हम बगावतें कर रहे हैं, जिस अल्लाह के मुकाबले में खड़े, उस अल्लाह की कुदरतें क्या है। तो खैर बात करें, आखिर में बताते हैं इस कौम का अंजाम क्या हुआ। तो इनके पहाड़ों में घर खोदने के पीछे असल ये वजह मालूम होती है। तो खैर ये कौम समूद, तो इनके पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिस तरह के कुफ्र शिर्क हर कौम के अंदर मुश्तरका है, इनको कुफ्र शिर्क से रोका, तौहीद की दावत दी, और साथ इसके साथ साथ इस कौम के और भी जराइम थे, डाके जनी के, इस तरह की चीज़ों के, उनसे उनको रोका। तो खैर कौम अपनी कुफ्र शिर्क पर बाकी रही, और बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि हमें कोई बड़ा मोजज़ा दिखा
کہ जिससे हमें पता चले कि तो वाकई अल्लाह के नबी है। और बल्कि ये भी रिवायतें आती हैं कि खुद उन्होंने मुतालबा किया था कि मुआजिज़ा ये हो कि इस पहाड़ से ऊँट ही निकले। अब पहाड़ों से तो जानवर पैदा नहीं होते ना, बेजान पत्थर, वहाँ से जानवर निकलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पहाड़ से ऊँटनी निकाल दी, बहुत बड़ी ऊँटनी। तो अब ये ऊँटनी अल्लाह ने उनको मुआजिज़तों के तौर पर दी। और असल तो ये होता है कि कौम के मुतालबे के बाद जब मुआजिज़ा मिल जाता है तो असल ये है कि कौम को ईमान लाना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने मुतालबा किया था अल्लाह ने पूरा कर दिया। अब बाकी सिर्फ ये बात रहेगी कि ईमान लाएं। लेकिन जब कौमों पर बदबख्ती छाई होती है तो मुआजिज़ात मिलने के बाद भी, जिन मुआजिज़ात का मुतालबा किया होता है, मिलने के बाद भी फिर भी ईमान लाने की तौफीक नहीं होती। तो चुनाचे ऊँटनी अल्लाह ने दे दी उनको बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी ईमान न लाए, बल्कि ईमान तो लाना की दूर की बात, इस मुआजिज़ाना तौर पर मिली हुई ऊँटनी से तंग आ गए। क्योंकि ये हमारे लिए मुसीबत है। मुसीबत क्यों है? क्योंकि इतनी बड़ी ऊँटनी थी, जाहिर बात उसका खाना पीना भी उसी हिसाब से था। अब अरब के सहराओं में आप जानते हो कि पानी की कमी होती है, तो उस कौम के यहाँ भी एक ही कुआं था, एक ही पानी का कुआं था। तो अब उस कुएं के अंदर पानी इतना ही होता कि जो उस कौम के लिए काफ़ी होता। तो अब ऊँटनी को पानी चाहिए था, तो ऊँटनी बहुत बड़ा पानी, एक बहुत बड़ी मिकदार में पानी पीती। उस पर फिर कौम को इस बात पर इख्तलाफ हुआ कि ऊँटनी हमारे को नुकसान कर रही है। तो अल्लाह ताला ने फिर सारे अलैहिस्सलाम को फरमाया कि इनके तुम पानी और पानी के इनके दरमियान तकसीम कर दो। एक दिन ये वो कुएं से पानी ले लिया करें, अपने बर्तन वगैरह भर ले दूसरे दिन के लिए, और दूसरे दिन जो है ऊँटनी जो है कुएं से पानी पी लेगी और इनको ऊँटनी का दूध मिल जाया करेगा। खैर इस तरह से उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इस पर भी वो जारी रहे। हत्ता कि आगे चल कर क्या करते हैं कि ऊँटनी को काट देते हैं, कत्ल कर देते हैं। जब ऊँटनी को कत्ल कर दिया, अब अल्लाह के दिए हुए मुआजिज़े को इस अंदाज से उसको मिटा देना, उसका मुकाबला करना अल्लाह के साथ चैलेंज है, अल्लाह के साथ बहुत बड़ा मुकाबले के अंदाज है। तो फिर अल्लाह ताला ने वार्निंग दी, सारे इस्लाम पर वही की कि इनको बता दो कि इनके पास 3 दिन का वक़्त है, उसके बाद इनकी हलाकत है। अब ये 3 दिन का वक़्त जो उनको मिला था, ये भी उनकी आँखें खोलने के लिए काफ़ी था। लेकिन जब कौमें बदबख्ती की इंतहा को पहुँची होती है, तो उस वक़्त फिर उनको इतनी ऐसी मिली हुई बोलते भी उनको काम नहीं आती। फिर भी अपने कुफ़र पर बाकी रहे और बल्कि सारे इस्लाम का मज़ाक उड़ाते रहे, अल्लाह के नबी का। तो तीसरे दिन जो है फिर कौम पर हलाकत होती है। एक ज़ोरदार चीख उनके दरमियान पैदा की जाती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आवाज़ निकालते हैं, ज़ोरदार चीख निकालते हैं कि जिस चीख के साथ क्या होता है कि उनके सीनों के अंदर उनके दिल फट जाते हैं, सीनों के अंदर उनके दिल फट जाते हैं और साथ ही एक ज़लज़ले की शक्ल में ज़लज़ला पैदा होता है। तो इस अंदाज से पूरी की पूरी कौम, उनके बच्चे, बड़े, मर्द, औरतें, सभी के सभी एक ही वक़्त में हलाक हो जाते हैं, सवाए उन चंद लोगों के जो मुसलमान हुए थे, वो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और उनके साथ जो साथ ईमान लाने वाले थे, अल्लाह ने उनको बचा लिया और बाकी पूरी कौम को इस अंदाज से एक लम्हे के अंदर ही उनको तबाह बर्बाद नेस्त नाबूद कर दिया। एक रवायत में आता है, एक हदीस में आता है कि उनका एक आदमी था अबू रुगाल नाम का, वो उस वक़्त हरम में था, बैतुल्लाह में था। आप कहें बैतुल्लाह तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, तो ये पहले की बात है। बैतुल्लाह जो है वो फरिश्तों ने बनाया था, आदम अलैहिस्सलाम से पहले। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया और इस अंदाज से बैतुल्लाह की तामीर होती चली आई है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तामीर की थी ना, वो उन्हीं बुनियादों पर की थी जो पहले से बैतुल्लाह बना हुआ था। बल्कि कुरान के अल्फाज भी यही हैं, वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, सूरह बक़रा में, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे, यानी पहले से बुनियादें मौजूद थी, उन्हीं पर बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। इसलिए बैतुल्लाह के हवाले से जो तारीख़ी तौर पर ये है कि अल्लाह ताला के फरिश्तों ने सबसे पहले उसको तामीर किया, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर उसके बाद इसकी तामीर होती चली आई। और अल्लाह आलम नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी ज़ाहिर बात तामीर हुआ है, क्योंकि सालेह अलैहिस्सलाम तो नूह अलैहिस्सलाम उनके बाद है ना, कौम समूद उनके बाद है। तो उनके बाद भी तूफ़ान हुए, ज़ाहिर बात है इतने बड़े तूफ़ान के अंदर इनको इनके ख़त्म हुआ होगा, दोबारा फिर से उसको तामीर किया गया। तो कहा जाता है कि उस कौम का एक काफ़िर आदमी ही उस वक़्त बैतुल्लाह हरम में था, तो हरम में होने की वजह से उस अज़ाब से बच गया जो कौम पर आया था।
लेकिन जैसे ही हरम की हदूद से निकलता है तो आप मानते कि उस पर भी वही अज़ाब पड़ा जो बाकी कौम पर था, और वो भी वहाँ पर हलाक हुआ। और आपने सहाबा को उसकी खबर दिखाई, सहाबा को उसकी खबर दिखाई कि अबू रुगाल की खबर है हरम के पास। तो खैर कहने का मकसद ये है कौम समूद का वाक़या, और ये कौम, इसके जुर्म क्या था, इसकी हलाकत किस तरीके से हुई, उसी चीज़ को अल्लाह ताला बयान करता है इन चंद आयतों के अंदर। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, जुटलाया कौम समूद ने अपनी सरकशी बगावत की वजह से। नहीं, और हर कौम का नबियों को जुटलाना, इनकार करना, अल्लाह की नाफरमानी करने के पीछे वजह यही होती है, बगावत होती है। अल्लाह पर ईमान नहीं होता, अल्लाह के लिए आदमी जब नहीं झुकता, अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो यही उस कौम की असल तबाही बर्बादी का जरिया होती है। इज़िम बअसा अशकाहा, जब खड़ा हुआ उठा उनमें से जो सबसे बड़ा बदबख्त था। इस जबकि इम्बासा खड़ा हुआ और उठा अशकाहा, उस कौम का सबसे बड़ा बदबख्त आदमी। और इसके बारे में उसका नाम जिक्र किया जाता है क़िदार इब्न सालिफ। ये शख्स था कि जिसने ऊँटी को काटा, ऊँटी को यानी कि काटा, उसको कत्ल किया। तो माया इम्बासा अशकाहा, कि जब उस कौम का सबसे बड़ा बदबख्त आदमी उठा ऊँटी को कत्ल करने के लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान था, उसने कौम को डराया, समझाया कि अल्लाह की इस ऊँटनी को नुकसान देने से बच जाओ, कि ऐसा काम ना करो। वसुक़याहा, और ना ही इसके पीने के जो पानी है उस पर कुछ ज़्यादती करो। तुम्हारी तकसीम कर दी गई है, एक दिन पानी तुम्हारा है, दूसरे दिन ऊँटनी का है, तो इसलिए ऊँटनी का पानी उसको पीने दो, उसको दे दो। और ना ही इस ऊँटनी के ऊपर किस तरह का कोई ज़्यादती करो, कोई ऐसा हाथ उठाओ। तो अल्लाह के रसूल ने उनको समझाया, उनको वादो तबलीग की, लेकिन कौम पर असर ना हुआ। फ़कज़्ज़बूहु, तो कौम ने उसको झुटलाया, मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया। फ़अक़रूहा, उस ऊँटनी को काट दिया, उसको ज़िबह कर दिया। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा, अल्लाह फरमाता है कि उनके इस गुनाह की वजह से अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। दमदम अलैहिम, उन पर हलाकत डाल दी। और दमदम अलैहिम का लफ़्ज़ ये माना देता है कि किस तरीके से उस कौम को, उस कौम की तबाही बर्बादी होती है। यानी एक होता है कि वैसे चलो किसी को मर जाए, को उसका एक है किसी के ऊपर इस अंदाज से को अज़ाब मुसल्लत हो जाए कि उसका वो जिसको हम कहते हैं मिलियामेट हो जाना, उसकी नस्ल कट जाना, उसकी जड़ तक ख़त्म हो जाना, तो इस अंदाज से तो उस कौम के ऊपर अल्लाह ने हलाकत डाली उनके गुनाहों की वजह से। और यहाँ पर हमें यही पता चलता है बिज़ंबिहिम, कि अल्लाह ताला किसी को ऐसे अज़ाब नहीं देता, न तो दुनिया का अज़ाब, ना कोई आखिरत का अज़ाब, इल्ला ये कि उसके पीछे उसका कोई जुर्म होता है। तो यहाँ पर भी कौम समूद का जुर्म था, गुनाह था, कुफर था, बेईमानी थी, जिस वजह से उन पर यह अज़ाब पड़ा। और न कि सिर्फ कौमें बल्कि अफराद का भी यही हाल है। कोई फ़र्द भी क्यों ना हो, कोई इंसान, उस पर कोई मुसीबत आती है, अल्लाह ताला क्या माता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि जो भी तुम पर मुसीबतें आती हैं उसके पीछे तुम्हारे अपने ही करतूत होते हैं, तो अपने ही कारनामे होते हैं, अपने ही तुम्हारी गुनाह होते हैं, जिस वजह से अल्लाह ताला तुम पर कोई मुसीबत डालता है। और इसलिए सलफ़ सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों का अंदाज़ रहा है कि जब वो उनके ऊपर कोई तकलीफ़ आती, कोई मुसीबत आती, कोई किस तरह का नुकसान होता, कुछ भी होता, तो फ़ौरन अपना जायज़ा लेते हैं कि हमसे क्या गुनाह हुआ है, हमसे क्या गुनाह हुआ है कि जिस वजह से अल्लाह हमारी पकड़ कर रहा है। और यही किसी इंसान की अक्लमंदी की दलील है कि अगर उसको अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ़, मुसीबत या कोई अज़ाब आता है, तो उसकी आँखें खोलता है और अल्लाह की तरफ पलटता है कि मैंने वाक़ई गुनाह किया है, तौबा तौब होता है। लेकिन जब बाद औक़ात इंसान गुमराही की, बेईमानी की इंतहा को पहुँचा होता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से अज़ाब पड़ते रहते हैं, और ये अज़ाब भी, डंडे जो उसको पड़ते हैं, ये भी उसको जगाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो चुनांचे इस कौम का अल्लाह ताला उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक किया। फसव्वाहा, सवा के मानी बराबर कर दिया, बराबर का मानी इसको हम कहते हैं मिलियामेट कर दिया, मिलियामेट कर दिया कि उनके बिल्कुल बच्चा तक बाकी न रहा, पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। वला यखाफु उक़बाहा, आगे आखिरी आयत में कि अल्लाह ताला को उनके इस इंजाम का कोई ख़तरा, डर भी ना था। क्या मतलब, इतनी बड़ी कौम को हज़ारों की तादाद में उनको एक साथ तभी सभी कौम को हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, तो अल्लाह ताला को पूछने वाला हो कि उनके बच्चे भी तूने मार दिए, उनका कोई भी ज़िंदा नहीं छोड़ा। समझे ना, दुनिया में होता है ना कि बड़े से बड़ा बादशाह भी क्यों ना हो,
وہ بھی اگر کسی بڑی جماعت کے خلاف ایکشن لیتا ہے، کسی بڑی پارٹی یا کوئی بڑے گروہ کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے، تو اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی تو کر رہا ہوں، نتیجہ کیا ہوگا، سمجھے نا؟ تو بڑے سے بڑے بادشاہوں کو بھی یہ چیز سوچنا پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مانتا نہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ یہ تو ایک قوم کا بات ہے، ایک قوم کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اللہ مانتا ہے پوری روئے زمین کے لوگوں کو، ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سبھی زمین بھر کے لوگوں کو ایک لمحے میں ختم کر دے، ایلیمنیٹ کر دے، اور اگلے لمحے میں دوسری قوم کو لا بسائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، جس میں اللہ کی بہت بڑی قدرتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کا مالک ہے۔ ہم انسان بڑے سے بڑے بھی وسائل ہوں، بادشاہ ہے، بڑی فوجیں ہیں، بڑے خزانے ہیں، بڑے مال ہیں، دولتیں ہیں، پھر بھی فرض کرو کہ صرف ایک شہر ہی گرا کر اس شہر کو بنانا ہو، ایک بستی کو گرا کر اس بستی کو بنانا ہو، تو کیا خیال ہے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ صرف بستی کے گھروں کی بات کر رہے ہیں، اس بستی کو آباد کرنا، وہاں پر زندہ لوگ پیدا کرنا، وہ تو انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، لیکن اللہ فرماتا نہیں۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے لوگوں کو ایک لمحے کے اندر چاہے تو ان کو ہلاک کر دے، سبھی کو ختم کر دے، اور ان کی جگہ پر دوسری قوم کو اگلے لمحے لا بسائے، اللہ کے ایک مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یخاف عقباها، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوم کو ہلاک تباہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے اس انجام سے کوئی خطرہ بھی نہ تھا کہ اللہ کا پوچھنے والا ہو کہ تو نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا۔ ہاں، اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لا یسأل عما یفعل۔ اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے کیوں کیا، اور جو پوچھتا ہے، پوچھنے کا معنی جو اعتراض کرتا ہے، وہ پھر اپنا انجام بھی سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کی عظمتیں۔ تو یہ تھی سورۃ الشمس کی جو مختصر انداز سے ہم نے تفصیل بیان کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انشاءاللہ ساتھیوں میں مشورہ ہوا ہے کہ آگے بھی صورتیں ماشاءاللہ بڑی مفید ہیں، لیکن سورہ یوسف جو ہے بڑی عظیم صورت ہے، بڑے سبق اس کے اندر ہمارے معاشرے کے لیے، خصوصاً آج کل کے دور کے اندر فتنوں کا دور ہے، اور یوسف علیہ السلام بھی اسی طرح کے بڑے طرح کے فتنوں کا شکار رہے تھے، لیکن اس عظیم ہستی نے رہتی دنیا کے لیے کیا عظیم مثالیں قائم کی ہیں یوسف علیہ السلام نے۔ تو حقیقت میں سورہ یوسف بڑی عظیم صورت ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس میں، کہ جس میں علماء کہتے ہیں کہ انسان کے لیے مایوسیوں سے امیدوں کے چراغ ملتے ہیں، کہ جہاں پر مایوسیاں چھائی ہوتی ہیں اور جہاں پر طرح طرح کے مشکلات ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں ہمیں طرح طرح کی امیدیں اور طرح طرح کے اللہ کے ساتھ اچھے گمان اور اس طرح کی چیزوں کے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو ایک واقعی مسلمان مومن کو ملنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے بڑی سبق کا وہ صورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ساتھیوں کا مشورہ ہے کہ ہم وہ صورت لینا چاہیں گے، تو اگلے درس سے انشاءاللہ سورۃ یوسف کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ساتھیوں کے ایک بھرپور انداز سے شرکت ہو، تاکہ اس عظیم صورت کے جو درس سبق ہیں اور ان کے جو عظیم جو ان کے حاصل ہونے والے جو نصیحتیں ہیں، ان سبھی کو ہم سیکھیں، اور ان کی ہم کو آج اشد ضرورت ہے۔ ان فکروں کے دور میں، ان گمراہیوں کے دور میں ہر مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے کہ اپنے آپ کو ان فکروں سے کیسے بچا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے نا امیدیوں کی مایوسی کے وقت میں اللہ کی طرف سے جو ہے مدد آتی ہے۔ تو بہت ایک سبق آموز صورت ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے درس سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔